Yeah, I have a microphone. No, no, that's not microphone. It is a recording for this. Oh, okay. So you have to have. अरे हाथ पर mic है क्या? Then you can. Yeah. वो आ जाएगा, हम सेटअप करेंगे. This also is there. I'll take this one and not this. Better. That's better. Hello, can you hear me? Yeah. Okay. So, there are two types of people. Some people are very conscientious. They like to do the right thing. They like to do the right thing. You all are here because you are conscientious, you want to know about health. You come here because you want to know about our Vedanta, spirituality. You are conscientious people. There are those who are not here. There are many people say it doesn't matter. Okay. Now, even conscientious people, if the information is wrong, the information that you have is wrong, your actions are going to be wrong. No? Agreed? Okay. See, 2000 years ago in India, it was same, Upanishads were same. Our Upanishads were same. Vedas were same. But our understanding was wrong. What we had understanding? Duality. There is a God sitting up in the heaven. And He is a keeping track record of all of us, what we are doing, and He will punish us or reward us. We used to start thinking like that. It's the duality interpretation of Vedanta. Then came Swami Shankaracharya, Adi Guru Shankaracharya, who taught us, that is wrong thinking. The thinking, we are only one. It's only consciousness, which is the correct thinking, Advaita. So for thousands of years, that is where Buddhism evolved, Jainism evolved, because the interpretation of Vedanta was incorrect. I'm trying to say is when our information is wrong, our understanding is wrong, our actions are going to be wrong. I will give you one personal example. When I was 6 years old, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6 years, my grandfather, my Nanaji, my mom's dad, my mom was the eldest in the family and I was the first grandson. He used to give me every day when I went during summer vacation, 2.5 months to Muradabad, a glass of milk with one yolk of egg. He would mix egg yolk in the milk, and they always has to have sugar in milk in those days, 60 years ago. Yeah, thank you, 70 years ago. Now he gave it to me because he wanted me to grow up well. It was his understanding that milk is very important for children. Egg is very important for children. Egg white is not good. Egg yolk is good. I didn't like it, but I took it because I loved him. Hello? It's not working. Hello? Yeah. Okay, you understand that? So I grew up learning. मैं हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में? English is okay or you want Hindi? English is okay, all right. I'll mix it. Okay. So when I went to IIT Kanpur, I was a skinny boy. So then some people said कि आप जिम जाया करो, थोड़ा वेट लिफ्टिंग किया करो, थोड़ी आपकी बॉडी बनेगी. तो जब जिम जाते हैं तो भूख की ज़्यादा लगती है. तो हमारे मेस में लंच और डिनर तो अनलिमिटेड था, लेकिन ब्रेकफास्ट में लिमिटेड मिलता था. 1 गिलास दूध का, 1 अंडा, 2 वाइट ब्रेड के स्लाइसेस और 1 मक्खन की टिक्की, 1 फल. तो मैंने जाके, मेरा रूममेट भी टेनिस का चैम्पियन था, यूपी रैंक का था जूनियर में. हमने जाके उनके मेस से कहा कि हमको डबल ब्रेकफास्ट चाहिए.
क्योंकि हम थोड़ा हेल्थ बनाना चाहते हैं, हम हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं हम दोनों जने। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका 100 रुपये का बिल है, 15 रुपये ब्रेकफास्ट का है, आप एक्स्ट्रा 15 रुपये दो, आप 2 ब्रेकफास्ट ले सकते। तो माई ब्रेकफास्ट वॉज 2 eggs, 2 glasses of milk, 4 slices of bread, 2 pats of butter. Then Rakesh, my roommate, he came from Allahabad. He had 2 cows at his home. He brought desi ghee, and we would take ghee in a katori to our mess and tell the waiter कि हमारी दाल में घी का तड़का लगा के लाना, और वो घी को हम रोटी में लगाते थे, बिकॉज वी वर टोल्ड घी तो ज़रूरी है, दूध घी मक्खन खाना चाहिए सेहत बनाने के लिए, है ना। फिर हमने एक दूध वाला रखा था जो रात को शाम को 6 बजे आधा लीटर दूध देता था, उसको उबाल के मैं और राकेश एक एक गिलास पीते थे कि भाई और दूध होना चाहिए। 2 गिलास मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम, 1 गिलास रात को। फिर एक आता है प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर बनाते हैं तो अपने दूध में 2-2 3-3 चम्मच प्रोटीन पाउडर डालते थे, क्योंकि उस समय हमारी इंफॉर्मेशन ही यही थी। मैं बात कर रहा हूँ 67, 68, 69, आई वॉज देयर टिल 71। फ्रॉम वॉट आई नो टुडे, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग। When I turned 30, I developed second stage cancer, lymphoma. Cancer had grown here. Okay. I went through surgery, I went through chemotherapy and radiation. My mother developed breast cancer at the age of 54, and she died by age of 55. She came and lived with us. We got married in California. गुरुद्वारे में, हॉलीवुड के गुरुद्वारे में हमारी शादी हुई थी। एंड आई गॉट हर बेस्ट ट्रीटमेंट आई कुड, बट शी डिड नॉट मेक इट। माई फादर एट द एज ऑफ 65 डेवलप्ड कैंसर ऑफ लेरिंग्स, दिस इज वोकल कॉर्ड, द कैंसर ऑफ वोकल कॉर्ड। आई ब्रॉट हिम टू स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल, showed him to the doctors there. They said we'll have to remove his vocal box. He will not be able to speak rest of his life. He decided against it and went through experimental radiation therapy, and he survived. He lived 18 years. I obviously survived. I am here in front of you. The point I'm trying to make is that when your information is wrong, your actions are going to be wrong. Wrong actions lead to lifestyle diseases. Okay. In 1967, at the India's #1 institute, which is in Hyderabad, it is called National Institute of Nutrition, NIN, Hyderabad. Dr. Gopalan did a study on mice. He created 2 groups of mice, 30 चूहे इस ग्रुप में, 30 चूहे इस ग्रुप में. He injected all mice with aflatoxin, which is a carcinogen. It causes cancer. 30. To one group, he fed protein, which was 5% protein in his diet, in their diet. 5% मतलब अगर 100 कैलोरी मिली हैं तो 5 प्रोटीन से आई हैं. दूसरे ग्रुप को उन्होंने 20% प्रोटीन दिया, 20%. एंड देन ही फाउंड कि जिस ग्रुप को 20% प्रोटीन दिया था सबको कैंसर हो गया और सब मर गए. अच्छा, चूहा क्या खाएगा? चूहा तो चीज़ खाएगा ना. चीज़ किससे? दूध से बनती है, गाय के दूध से, भैंसे के दूध से हम चीज़ बनाते हैं. चूहा चीज़ खाता है. तो वो जो प्रोटीन था उस स्टडी में, 1967 की बात है, हा? वो दूध से आया था, गाय के दूध से. इस स्टडी को उन्होंने 1968 में पब्लिश किया एक जर्नल में. उनको इस वर्क के लिए पद्म भूषण से संवारा गया था. हाँ? लेकिन ये इंफॉर्मेशन मीडिया में नहीं छपी, किसी अखबार में नहीं. अगर छपी होती तो फिर मैं क्यों लेता दूध? मैं तो 3-3 गिलास दूध ले रहा था, मक्खन ले रहा था, घी ले रहा था. मेरी तो नॉलेज ये थी ना, भाई आई वॉज ए कॉन्शियस पर्सन, आई वॉज हेल्थ कॉन्शियस, आई वॉन्टेड टू डू द राइट थिंग. लॉट ऑफ यू आर स्टडिंग हियर, आप लोग बच्चे हो, यहाँ आए हो, आप समझदार लोग हो
जो ना समझ है वो नहीं आए यहाँ, वहाँ बैठे हुए कोई टीवी देख रहे होंगे, कार्टून देख रहे होंगे, कि आप संडे यहाँ आए हो क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट करी है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे आप अच्छा काम करना चाहोगे। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो वो अच्छा काम ही गलत हो जाएगा। मेरी इन्फॉर्मेशन गलत थी कि अंडा खाना चाहिए, दूध लेना चाहिए, दही खाना चाहिए, घी खाना चाहिए, उस वजह से कैंसर हुआ। तो 68 में हमें मालूम था, हमारे इंडिया में ही रिसर्च हुई थी डॉक्टर गोपालन की। उस स्टडी को उन्होंने पब्लिश किया एक इंटरनेशनल इंडियन जर्नल ने, जो अमेरिका में पहुंचा। वहाँ के जो नंबर 1 न्यूट्रिशनिस्ट हैं इस समय, 93 ईयर ओल्ड हैं, उनका नाम है डॉक्टर कॉलिन कैम्बल। तो उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो गलत है। डॉक्टर कॉलिन कैम्बल ने पीएचडी करी थी न्यूट्रिशन में। उनका पीएचडी का सब्जेक्ट था हाउ क्रिटिकल इज एनिमल प्रोटीन फॉर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पीएचडी की थीसिस थी कि एनिमल प्रोटीन खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ह्यूमन ग्रोथ के लिए। जब उन्होंने ये आर्टिकल देखा कि जिन चूहों को 20% प्रोटीन दिया था वो मर गए, जिनको 5% दिया था वो जिंदा रहे, तो उन्होंने कहा ये तो गलत है, मेरे को मालूम है, मैंने तो पीएचडी कर रखी है। उन्होंने कॉल किया एडिटर को कि आपने क्या छाप दिया, ये तो गलत है। ऑब्वियसली आपका डेटा इधर का उधर चला गया होगा, उधर का इधर आ गया होगा, गलती हो गई होगी, इसको आप रिट्रैक्ट कीजिए। सो ही एडिटर गॉट नर्वस। उस एडिटर ने जाके डॉक्टर गोपालन से कहा कि सर ऐसे ऐसे अमेरिकन साइंटिस्ट की कॉल आई है मेरे को, और वो कह रहे हैं कि आपने तो उल्टा डेटा छाप दिया है। तो डॉक्टर गोपालन हंसने लगे। उन्होंने कहा हमको भी लगा था कि गलत है, वी एक्सपेक्टेड कि जिनको 20% दिया है वो जिंदा बचेंगे, 5% वाले मर जाएंगे। हमको सारी ज़िंदगी ये बताया गया है कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा प्रोटीन खाओ, दूध खाओ, मलाई खाओ, मक्खन खाओ। लेकिन अब जो डाटा है तो वो तो पब्लिश वही करना पड़ेगा ना जो सच है। तो डॉक्टर कॉलिन कैम्बल को एडिटर ने बताया, उन्होंने फिर भी नहीं माना उस बात को। ही हैड बिकम प्रोफेसर एट कॉर्नेल। उन्होंने कॉर्नेल में जाके अपनी लैब में उसी स्टडी को रेप्लिकेट किया एंड ही फाउंड इट टू बी करेक्ट। उसी दिन उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस को 180 डिग्री टर्न दे दिया। फिर उन्होंने रिसर्च करी कि अच्छा 5% वाले बच गए, हाउ अबाउट 6%, 6% वाले भी बच गए। सारी लाइफ पिछले 60 साल से उन्होंने इसी पे रिसर्च करी है, कैंसर एंड डेयरी प्रोटीन, मिल्क, दूध, दही, मक्खन। 7% दिया, वो भी बच गए। जैसे ही 7% से 8% पे पहुंचे, कैंसर शुरू हो गया, कैंसर शुरू हो गया। मतलब ये कहने का कि जो लोगों में खाना अवेलेबल है, जो खाते पीते लोग हैं, भूखे नहीं हैं, उनके खाने में अगर एनिमल प्रोटीन है, दूध वाला प्रोटीन है, तो उनको कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो भूखे हैं उनमें नहीं फर्क पड़ेगा। 8% से कम जिनको दिया, जब हम पुराने ज़माने में जब हम जंगलों में घूमते थे, खाने के लिए कम था, उस समय एक भैंसे का दूध लेके पीना ठीक था हमारे लिए। लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए इतना ज़्यादा है, हमारे लिए वो दूध फ़ायदेमंद नहीं है, उससे कैंसर होता है। मैंने अपनी फैमिली का बता दिया ना आपको एग्जाम्पल, इंडिया की स्टडी है। तो मतलब ये कहने का कि अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो हमारे एक्शंस गलत होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इंफॉर्मेशन क्यों गलत है, जो हमको इंफॉर्मेशन दी गई है क्यों गलत है। तो ये मैं सिखाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, और हम इस स्लाइड प्रेजेंटेशन में देखेंगे। आई विल जस्ट यूज दिस हियर स्लाइड। ये देखिए, अच्छा, नो मैटर हाउ सिंसियर वी आर, इफ द इंफॉर्मेशन वी रिसीव इज रॉन्ग, आवर एक्शंस विल आल्सो बी रॉन्ग। ह्यूमन बॉडी लाइक ऑल मैमल्स इज सेल्फ हीलिंग। आप जंगल में जाते हैं, हर तरह के वहाँ जानवर हैं, मैमल्स हैं, वहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं है ना। जो बीमार होता है अपने आप ठीक हो जाता है। हमारा जो शरीर है वो सेल्फ हीलिंग है।
वो अपने आप ठीक हो जाता है। आप विल्डरनेस में कहीं भी देख लो, आपको बीमार लोग नहीं नजर आएंगे, बीमार जानवर नहीं नजर आएंगे। जब कुत्ते का पेट खराब होता है तो वो खाना खाना बंद कर देता है, उसको मालूम है वो खाना बंद कर देगा, एक दिन में पेट ठीक हो जाएगा। ओके, हम ही लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से कहते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डॉक्टर कहता है ये दवाई ले लो कम हो जाएगा। अरे ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों है, उसकी वजह क्या है, ये तो पहले समझो। आपके खाने में एक ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है। आपके खाने में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर ज़्यादा हो गया है। आपके खाने में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से आपको आर्थराइटिक का दर्द होना शुरू हो गया है। हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं कि हमारे रहन सहन में क्या खामी है, क्या कमी है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। डॉक्टर कहता है ये दवाई ले लो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड शुगर है, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो दर्द है, नी में हो रहा है, ये आपके मैसेंजर हैं जो मैसेज लेके आए हैं कि भाई आपके रहन सहन में कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आपको ये हो रही है परेशानी। हम मैसेज तो सुनते नहीं हैं, मैसेंजर को गोली मार देते हैं। अब मान लो अब हमारा पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, अब मान लो पुलवामा में ये फार्मर हैं, मान लीजिए इनके पास वहाँ पे 200 एकड़ ज़मीन है और इनकी जो फेंस है उसके उधर पाकिस्तान है। और ये परसों सुबह उठे फ्राइडे को तो देखा कि भाई पाकिस्तान ने 5000 टैंक लगा दिए। तो इन्होंने मोटरसाइकिल में बैठे, मोटरसाइकिल का आ गए ये राजपथ पे कि मेरे को मोदी जी से मिलना है। क्यों मिलना है? नहीं सब बहुत ज़रूरी बात बतानी है, मैं सारी रात ड्राइव करके आया हूँ मोटरसाइकिल, मेरे को मिलना है। वो मिलाया, मोदी जी पुलवामा में मेरा 5 एकड़ का 50 एकड़ का ये फार्म है, 50,000 टैंक कल रात को आके खड़े हो गए। अब मान लो मोदी जी को खबर ना अच्छी लगे, इसको गोली मार दो, खराब खबर है। उसको गोली मारने से क्या फ़ायदा, वो तो मैसेंजर है बेचारा, ये तो मैसेंजर है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये तो मैसेंजर है। और डॉक्टर गोली मार के ब्लड प्रेशर नीचे कर देता है, ये दवाई खा लो नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे ला रहे हो? उसकी पहले मैसेज तो सुनो। मैं समझ में आ रही है आपको बात? पीछे सब लोगों को सुनाई दे रहा है? अच्छा, तो हमें मैसेज सुनना चाहिए। जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो डाइट या लाइफस्टाइल की वजह से हैं, तो डाइट बदलो या लाइफस्टाइल बदलो। तो ये मैं सबको सिखाता हूँ। अच्छा ये देखिए, तो जब हमारा बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी सेल्फ अडॉप्ट करती है। जब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ख़राब खाना खाने से उसमें प्लैक डेवलप हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, तो उसकी जो ओपनिंग है वो कम हो जाती है। जब ओपनिंग कम हो जाती है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। भाई अब देखो हमारा होज़ होता है जिससे हम गार्डनिंग करते हैं, और होज़ का अगर मुंह इतना खुला है, आप आधा मुंह दबा दो तो धार दूर तक जाती है ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। ओपनिंग कम होगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर में जो आर्टरीज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी ओपनिंग कम होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओपनिंग कम क्यों होती है? क्योंकि हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो गया है। तो वो डिपॉजिट को कम करो ना, ब्लड प्रेशर को क्यों कम कर रहे हो? अच्छा वो डिपॉजिट कैसे कम होता है ये बताऊंगा, ये सब हम बताते हैं। जब हम हरी सब्जी खाते हैं या हरी सब्जी का जूस लेते हैं, हम लोग पुराने ज़माने में बहुत हरी सब्जी खाते थे, पालक, मेथी, बथुआ, पत्ते खाते थे, मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते, शलगम के पत्ते, चुकंदर के पत्ते। अब हम पत्ते तो फेंक देते हैं, गाय को खिला देते हैं, चुकंदर खुद खा लेते हैं, शलगम खा लेते हैं, पत्ते फेंक देते हैं। हमारे खाने में पत्ते बचे ही नहीं हैं। हरे पत्तों में नाइट्रेट होता है। ये नाइट्रेट जब हम खाना खाते हैं, जब वो ब्लड में आता है तो उससे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होती है, NO। वो गैस आपके जो डिपॉजिट है उनको साफ कर देती है। देखिए बिल क्लिंटन दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी था, अमेरिका का प्रेसिडेंट था ना 2000 तक। 2000 में वो रिटायर हुए। जब रिटायर हुए तो 2004 में उनका क्वाड्रुपल बाईपास ऑपरेशन हुआ, 4 बाईपास हुए।
या बाईपास में आपका रिब केज को काट के खोल के उसके आपकी जो आर्टरीज हैं उसको बाईपास करते हैं। 4 बाईपास 2004 में। 2008 में 2 स्टेंट लगी खोलने के लिए, और 2010 में डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका एक और डबल बाईपास करना पड़ेगा। तो उनके एक फ्रेंड हैं डॉक्टर डीन ऑर्निश, सैन फ्रांसिस्को में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को। उनका बेल बाईपास कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम डॉक्टर कॉल्डवेल एसिस्टेंट की केयर में चले जाओ। अच्छा, कॉल्डवेल एसिस्टेंट की क्या केयर है? उन्होंने बिल क्लिंटन से कहा दवाइयाँ सारी छोड़ दो, दवाइयाँ नहीं फ़ायदा करेंगी, दिन में 5 बार हर 2 घंटे के बाद 1 प्याला हरी सब्जी खाओ। 1 प्याला, 3/4 से 1 प्याला हरी सब्जी उबाल के खा लो, कच्चा सैलेड की तरह खा लो, जैसे भी खा लो, हरी सब्जी खाओ। अब आज कितने 15 साल हो गए हैं, बिल क्लिंटन को कोई परेशानी नहीं है। हमको ये मालूम है 1987 में 2 डॉक्टरों ने रिसर्च करी थी, एक डॉक्टर डीन ऑर्निश ने सैन फ्रांसिस्को में और एक डॉक्टर कॉल्डवेल एसिस्टेंट ने क्लीवलैंड में, क्लीवलैंड हार्ट क्लिनिक। उन्होंने इस रिसर्च से पाया कि जब हम हरी सब्जी खाते हैं तो हमारी जो ब्लॉकेजेस हैं दूर हो जाती हैं, ब्लॉकेजेस दूर हो जाती हैं। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक किसी ने नहीं आने दिया। 1998 में मैं यहाँ आया था 2 हफ्ते के लिए, तो मेरे फादर कोलैप्स कर गए। उनको हम अपोलो हॉस्पिटल ले गए। अपोलो हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि इनके 3 ब्लॉकेजेस हैं, एक 97% है, एक 95% है, एक 94% है, इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। उस समय मेरे को नहीं मालूम था जो अब मालूम है। मैंने कहा जैसा आप ठीक समझें, आप लोग डॉक्टर हैं, आपको मालूम है क्या करना है। उनकी ट्रिपल बाईपास सर्जरी हुई, वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं आए, उनकी रिकवरी नहीं हो पाई। 1 महीना रहे हॉस्पिटल में, मैं 10 दिन के लिए आया था, पूरा 1 महीना मैं रहा हूँ, उसके बाद और 1 हफ्ता। ही डाइड इन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल। लेकिन जो लोग हरी सब्जी खाना शुरू कर देते हैं उनका साफ हो जाता है। तो डाइट इज द सॉल्यूशन। मेरे को 6 बीमारियां थी 2013 में जब मैं इस फील्ड में आया हूं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गाउट में पैर के घुटने में दर्द होता है बहुत, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी में दर्द शुरू हो गया था, और स्लीप एपनिया। मेरा वजन अभी जो है उससे 30 किलो ज़्यादा वजन था। पैंट का साइज 40 इंच था, अब 33 इंच है। विद इन 1 ईयर सारी दवाइयाँ छूट गई। 6 दवाइयाँ थी विद इन 1 ईयर। उसके बाद मेरे जो डायबिटीज़ की डॉक्टर थी वो कहने लगे कि नहीं नहीं, ये तो तुम्हें डायबिटीज़ तो ठीक नहीं होती है, सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ये वो। तो मैंने इस सब्जेक्ट में स्टडी शुरू करी। मैंने 5000 घंटे लगाए इसको स्टडी करने में अगले 5 सालों में, 2013 से 2017। फिर 2017 में हमारा IIT कानपुर का गेट टुगेदर हुआ था, ओके, 45 ईयर गेट टुगेदर। उसमें आके हमारा ग्रुप बना, मैं उसमें समझाने लगा। लोगों ने कहा ललित तुम बात पते की करते हो, बाकी तो ग्रुप में नॉनसेंस होती रहती है, हंसी मजाक, हम तुम्हारे लिए अलग ग्रुप बनाएंगे खाली हेल्थ की बात करने के लिए। तो उन्होंने मेरे लिए एक LMK हेल्थ ग्रुप बनाया और उसमें मैंने सिखाना शुरू किया। तो जितने जो लोग जुड़े उनकी भी दवाइयाँ छूट गई। फिर जब मैं ये बात है अगस्त 17 की, फरवरी 18 में यहाँ आया तो उन्होंने टॉक अरेंज करवाई। IIT दिल्ली में टॉक हुई, IIT के दिल्ली के लोगों ने सुना। फिर उसके बाद आगे बढ़ी, IIT बॉम्बे के लोगों ने सुना, IIT रुड़की के लोगों ने सुना। अब उस बात को 9 साल होने को आ रहे हैं और मेरे साथ 600 ग्रुप ने कोर्स अटेंड कर चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोग इस कोर्स को अटेंड कर चुके हैं। हम फ्री में कोर्स देते हैं दुनिया में पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। 50 शहरों में, वर्ल्ड की 50 कंट्रीज़ में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं।
मैं यहाँ से सिंगापुर जा रहा हूँ और 14-15 को मेरा सिंगापुर में सेमिनार है, अभी अगस्त में हुआ था, तो ट्वाइस ए ईयर सिंगापुर में, ट्वाइस ए ईयर दुबई में, इस तरह से मैं सब जगह कनाडा में, यूएस में मैं सेमिनार देता हूँ। हम 2 दिन की रिट्रीट करते हैं। ये तो इंट्रोडक्टरी डिस्कशन है देखिए हमारा। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई हम आपका सेमिनार सुनते हैं, हमें बातें समझ में आती हैं, हमारी दवाइयाँ छूट जाती हैं, लेकिन बाज़ार में कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता, जहाँ जाते हैं कोई अच्छी चीज़ मिलती नहीं है। तो हमने अभी 2 साल पहले एक फूड कंपनी भी शुरू करी है गुड़गांव में, जहाँ हम लोगों के घर में फ्रेश चीज़ें भिजवाते हैं जूस बना के। तो ये जो बिल क्लिंटन वाली आपको मैंने बात बताई है, आप सैलड खा सकते हो या जूस पी सकते हो, हरी सब्जी का जूस बना के, ओके, वो हम लोगों को घर में भिजवाते हैं। हम बादाम से दूध बनाते हैं, मूंगफली से दूध बनाते हैं, हम बनाते हैं दही, वो मूंगफली के दूध से बनाते हैं, गाय के दूध से नहीं बनाते हैं, ओके। हमारा जो मक्खन है वो काजू से बनता है, काजू का मक्खन बनाते हैं सरसों डाल के। तो इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा बताऊंगा कि क्या है, क्यों होता है, थोड़ा सा आपको ब्रीफली। तो हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन का फोकस है ऑन सप्रेसिंग सिम्टम्स रादर देन आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग द रूट कॉज। मच ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इज इनएक्यूरेट। तो सवाल ये उठता है कि ये क्यों है गलत इंफॉर्मेशन। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया में जब हम फूड की बात करते हैं तो उनके लिए फूड इज एनिमल फूड, मीट, अंडा, मच्छी, चिकन, दूध, दही, ये उनके लिए खाना है। भिंडी बैगन दुनिया के लोगों के लिए खाना नहीं है, वो हमारे भारतीय लोगों में खाते हैं, उनके लिए ये खाना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने आलू खा लिया और टमाटर खा लिया केचप बना के उनके खाने में। तो जो उनका खाना एनिमल बेस्ड है, एनिमल खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। देखिए 3 मेन चीज़ें होती हैं खाने में, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, 3 चीज़ें होती हैं ना। तो एनिमल फूड में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, या तो प्रोटीन होता है या फैट होती है, 2 ही चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने सारी दुनिया में ये इन्फॉर्मेशन फैला दी है, अरे कार्ब तो बहुत ख़राब होते हैं, कार्ब ना खाया करो, आलू ना खाया करो, चावल ना खाया करो, बहुत हानिकारक है, अंडा खाओ, मच्छी खाओ। हाँ, अगर ये बच्चे को इसमें जो जिम कोई जाता होगा तो जिम में इनका कोच यही कहेगा, अरे अरे आलू ना खाया करो, हाँ अंडा खाया करो, रोज़ 2 अंडे 4 अंडे खाया करो, दूध लियो 3 गिलास 4 गिलास, जैसे हमने किया था। मैंने वही किया ना 5 साल IIT में, उससे पहले मेरे नाना जी ने वही करवाया। When your information is wrong, your actions are going to be wrong. शंकराचार्य ने हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट करी थी आज से 1200 साल पहले। हमारे गुरुदेव शंकराचार्यों ने 10 उपनिषद के ऊपर कमेंट्री लिखी थी। उन 10 को हम मेजर उपनिषद कहते हैं। हमारे गुरुदेव ने उन 10 उपनिषद की उनकी कमेंट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दैट इज राइट इंफॉर्मेशन, अद्वैता। उसी तरह से राइट इंफॉर्मेशन ये है कि हमारी बॉडी इज सेल्फ हीलिंग, हमारी बॉडी इज सेल्फ हीलिंग। हमारी बॉडी को मालूम है क्या खाना है, इसको अकल है, हम इसको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो गलत इंफॉर्मेशन को आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन आप करेक्ट करें। अच्छा, तो देखिए जो मेडिकल एजुकेशन की गाइडलाइंस हैं, दे आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय फूड एंड फार्मा इंडस्ट्री। जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं अमेरिका में, 2 को छोड़ के ऑल मेडिकल कॉलेजेस आर कंट्रोल्ड बाय फूड एंड फार्मा इंडस्ट्री। लॉबी बोल दीजिए, लॉबी, फार्मा लॉबी, या फार्मा लॉबी, फूड लॉबी, फार्मा लॉबी। फूड इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो फूड वाले ये नहीं चाहते कि आपको पता चल जाए कि कार्बोहाइड्रेट तो बहुत हेल्दी हैं, ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन खाली 6% खाना चाहिए। देखो जब बच्चा पैदा होता है माँ को, तो बच्चा नया पैदा हुआ, मान लो आज सुबह बच्चा पैदा हुआ किसी माँ को, तो उस बच्चे का खाना किसने बनाया है? मदर नेचर ने या भगवान ने, जो आप कहें, है ना। वो तो माँ के दूध में है ना बच्चे का खाना। ये बच्चा सबसे ज़्यादा इस रफ्तार से बड़ा हो रहा है,
3-3.5 किलो का बेबी 6 महीने में 7 किलो का हो जाता है। डबल हो गया ना। हम लोग तो नहीं डबल ग्रो कर रहे हैं, ये भी बच्चे डबल तो नहीं ग्रो कर रहे हैं। तो जब फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है बच्चे की, तो भगवान ने माँ के दूध में कितना प्रोटीन दिया है? 5 से 6%। माँ के दूध में 5 से 6% प्रोटीन होता है, बस, उससे ज़्यादा नहीं होता। वाई शुड एनीबडी नीड मोर देन दैट? लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन सबको पता चल जाए तो सब मांस मच्छी खाना बंद कर देंगे, तो फूड इंडस्ट्री का तो ठप्पा बैठ जाएगा। और कोई बीमार नहीं होएगा तो दवाइयाँ कैसे बिकेंगी? दवाइयाँ तो तभी बिकती हैं जब बीमार होते हैं। तो वो गलत खाना खा के हम बीमार हो जाते हैं। बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस डॉक्टर को किसने सिखाया है? फूड और फार्मा इंडस्ट्री ने। क्योंकि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकल रिसर्च इज फंडिंग कम्स फ्रॉम इंडस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन ट्रीटमेंट एंड ड्रग डेवलपमेंट। वो प्रिवेंशन नहीं बताते हैं कि प्रिवेंट कैसे करनी है। प्रिवेंशन में तो पैसे ही नहीं है, ट्रीटमेंट में पैसे हैं, है ना? रादर देन प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ डिजीज, कोई नहीं बताता। तो फूड से आप बीमार हो रहे हैं। कौन से फूड से? जो डब्बे में आता है। देखो, आप जब किसी के पास जाते हो, डॉक्टर के पास, तो वो सारा ब्लेम आपके मत्थे जड़ देता है। इट इज ऑल योर फॉल्ट। क्यों? यू आर ईटिंग टू मच एंड नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ। हैव यू हर्ड दैट? डॉक्टर टेलिंग यू दैट यू आर ईटिंग टू मच, नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ। और हम शीपिशली सुन के आ जाते हैं घर, हाँ सारी मेरी गलती है। अरे उनसे पूछो, हम समझदार लोग हैं। मैं कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ, मैंने बिजनेस संभाला है, मेरे 40 एम्प्लॉयज़ थे। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ? वाई एम आई ईटिंग टू मच? आप सवाल पूछो। एम आई सोसाइटल? एम आई मैड? वाई एम आई ईटिंग टू मच? इज़न्ट दैट अ गुड क्वेश्चन टू आस्क? आई विल गिव यू द आंसर। यू आर ईटिंग टू मच क्योंकि जो आप खाना खा रहे हैं, जो एक डब्बे में आया है, जिस कंपनी ने वो खाना बनाया है, वो पोटैटो चिप्स बनाए हैं, वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा खाएं। ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप कभी घर में पोटैटो चिप्स बनाओ, एक आप बड़े आलू के आप 50 स्लाइसेस करो और आप उसको घी में भून के नमक मिर्च डाल दो। आप अपना, आपका हस्बैंड, दोनों जने बैठ के खाएं। आप 10-15 चिप खाओगे, आप कहोगे बहुत हो गया, कुछ और मीठा दो। क्या कहते हैं हम लोग? मन भर गया, जी भर गया, है ना? कहते हैं ना, जी भर गया। कितना? 10-15 चिप्स खाने के बाद। बाजार में एक चिप्स आता है, उसको कहते हैं प्रिंगल। प्रिंगल का डब्बा आता है। जब आप खोल के एक मुंह में डालते हो, अब आपका हाथ नहीं रुकेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100 के 100 खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चिप्स जिसने बनाए थे कंपनी ने, कंपनी ने एक साइकोलॉजी में पीएचडी लोगों को हायर किया था। उनको मालूम है कि आपका जो सेशिएशन मैकेनिज्म है आपके दिमाग में, उसको बाईपास कैसे करना है, कैसे बाईपास करना है। दैट इज हाउ द फूड इज डिजाइन्ड। द रीजन यू आर ईटिंग टू मच इज बिकॉज द फूड वाज डिजाइन्ड बाय एक्सपर्ट्स फॉर ओवर कंजम्पशन। अब कभी ऐसा हुआ है कि आपने भिंडी बनाई हो या बैगन बनाए हो स्लाइस करके, और आप मूवी देख रहे हो, आप बैगन खाते जाओ, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100? नहीं, आप 5-6 स्लाइसेस खाओगे, कहेंगे बहुत हो गया, हटा लो, कुछ और दो, रसगुल्ला दो, चाय दो, कॉफ़ी दो, क्योंकि जी भर जाता है। लेकिन बजाज की हल्दीराम का नमकीन हॉट मिक्स आता है, उसमें लिखा होता है 20 सर्विंग। हाँ, 20 सर्विंग। आदमी एक ही दिन में सारा खा जाता है, फिर भी ढूंढता है, निकाल के एक रह गया, थोड़ा सा मुंह में डाल। क्यों? It is designed for overconsumption. It is not your fault. The fault of the food you are eating. जिसको हम कहते हैं कि ग्लटनी, ज़्यादा खाने को ग्लटनी कहते हैं इंग्लिश में। हम लोग कहते हैं ग्लटनी कैरेक्टर का फ्लॉ है, ये आपके कैरेक्टर में फ्लॉ है। ग्लटनी कैरेक्टर का फ्लॉ नहीं है, हम लोग समझदार लोग हैं। इट इज़ नॉट आवर कैरेक्टर फ्लॉ। दूसरा होता है स्लॉथ। स्लॉथ मतलब बैठ गए और टीवी देख रहे हैं, उठ के वॉक करने का दिल नहीं कर रहा कि जाके टेनिस खेलें, वॉलीबॉल खेलें ना, बैठ के शो देखना है, कार्टून देखना है बच्चों को। वो क्यों होता है? दूसरा सवाल, क्यों होता है?
इसके ऊपर रिसर्च हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में। डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग फेमस डॉक्टर हैं, उनकी कई किताबें हैं, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने रिसर्च करी छोटे बच्चों पे, 13-14 साल के बच्चों पे, 12 से 16 साल के बच्चे हैं। तुम्हारी कितनी उम्र है? 17? अच्छा, 17 तक। हाँ, वो सब बच्चे बड़े मोटे थे, उनका वजन 150 किलो, 250 किलो। उनकी माएँ परेशान थी, ना खेलने नहीं जाते थे, दिन भर बैठ के और वो अपना पोटैटो चिप्स खा रहे हैं और चॉकलेट और कैंडी और कोका कोला पी रहे हैं। अच्छे घर से, पढ़े लिखे घर की फैमिली, बाहर जाके नहीं खेलते थे। तो डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग ने कहा, सोचा कि ये जो खाना खा रहे हैं, इस खाने से, इस प्रोसेस फूड से आपका बॉडी में जो इंसुलिन लेवल है वो बढ़ जाता है। इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। जब इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है तो नॉर्मली इंसुलिन लेवल तब बढ़ता है जब शरीर में काफ़ी शक्कर हो, क्योंकि इंसुलिन शक्कर को मसल के अंदर डालती है। तो आपकी बॉडी वर्कआउट नहीं करना चाहती, कहती अभी तो शक्कर गई नहीं है मसल में, इंसुलिन लेवल ज़्यादा है। तो उन्होंने इसको हाइपोथेसाइज किया और उन्होंने इन बच्चों को दवाई देके इनका इंसुलिन लेवल कम कर दिया। बच्चे कुर्सी में नहीं बैठते थे, बाहर जाके खेलने लगे सारा दिन। उनकी माओं को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अरे मेरा बेटा सबकी तरह दिन भर खेलने लगा है। हमारा ह्यूमन नेचर है, we are not designed to sit down, our body is not suitable to sit down, our body should be walking all the time। खाली रात को सोना है 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे, जो भी है, दिन भर हमको चलते फिरते रहना है। हमारा शरीर इस तरह से बना है। लेकिन वो जो खाना खाते हैं, प्रिंगल पोटैटो चिप्स, हल्दीराम का नमकीन, उससे हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ता है और बॉडी कहती है फैट नहीं बर्न करो, एनर्जी कंजर्व कर लो, अभी तो शुगर गई नहीं है मसल के अंदर। देखा, उल्टा हो गया, समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो अच्छा, ये हैं हिप्पोक्रेटिस, ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे, डॉक्टर थे। ये ही वॉज बॉर्न इन 460 BC, तो तकरीबन 2000 साल पहले, 2500 साल पहले इनकी पैदाइश हुई थी। ही वॉज वेरी ब्राइट। हम लोग इनको क्रेडिट देते हैं मॉडर्न मेडिसिन का। मॉडर्न मतलब जो मेडिसिन पिछले 2000 सालों से चली आ रही है। अच्छा, उस ज़माने में अगर कोई बच्चा बहुत स्मार्ट था तो उसको माँ बाप ने पढ़ने के लिए कहाँ भेजा होगा? आप ज़रा सोचो। आजकल जो बच्चा, मान लो ये बच्चा बहुत स्मार्ट है और टॉप करता है IIT में आज से 5 साल के बाद, तो उसके माँ बाप इसको कहाँ भेजेंगे? MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड भेजेंगे ना? बेस्ट प्लेसेस है। चाहे उनको लोन लेना पड़े, घर में EMI बढ़ा दे उनका, कहीं नहीं, बेटे को सबसे अच्छी एजुकेशन देनी है। तो ये अपनी तरफ से इंटेलिजेंट रहा होगा। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी कौन सी थी? इंडिया। और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तक्षशिला। 2500 साल पहले तक्षशिला थी। उसके बाद में आपका दूसरा नालंदा बनी 500 साल के बाद। तो ये प्रॉब्ली तक्षशिला में आके पढ़ा होगा, क्योंकि जो ये कहता है वो हमारे वेदांता में उससे 1000 साल पहले लिखा हुआ है। इसकी खैर चलो मानो हमने इसको क्रेडिट दे देते हैं। इसने जो एक ओथ लिखी थी, ये ग्रीक फिलोसफर था, कि जितने डॉक्टर ग्रेजुएट होंगे उनको एक शपथ लेनी पड़ेगी। क्या थी शपथ? आई विल अप्लाई डाइटेटिक एंड लाइफस्टाइल मेजर्स। डाइटेटिक एंड लाइफस्टाइल एक ग्रीक वर्ड होता है, उसको कहते हैं डाइटामासी। ग्रीक में थी ना, डाइटामासी के मतलब होते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल। आई विल अप्लाई डाइट एंड लाइफस्टाइल मेजर्स टू हेल्प द सिक to my best ability and judgment. I will protect them from harm and injustice. ये ओथ लेनी पड़ती थी 2500 साल। अब जो 100 साल पहले मॉडर्न मेडिसिन बनी है, जो आपके डॉक्टर हैं, उन्होंने कौन सी ओथ ली होगी? वो ओथ चेंज कर दी, एक छोटा सा चेंज किया है। ये है आजकल की, I will use treatment to help the sick according to my ability and judgment, but never with a view to injury and wrongdoing. ट्रीटमेंट वर्ड डाल दिया, डाइट एंड लाइफस्टाइल को निकाल दिया और ट्रीटमेंट डाल दिया। तो जो डॉक्टर हैं आजकल वो ट्रीटमेंट करते हैं,
डाइट लाइफस्टाइल उनको सिखाया ही नहीं जाता, वो कैसे आपको सिखाएंगे, उनको खुद ही नहीं सिखाया जाता, क्योंकि डाइट एंड लाइफस्टाइल में तो पैसे हैं नहीं, पैसे तो ओपन हार्ट सर्जरी में हैं। अब मान लो इनको प्रॉब्लम है हार्ट की और डॉक्टर के पास जाएं और ये डॉक्टर है वहाँ पे लेडी डॉक्टर मेदांता में, और इनको देखें तो कहें कि अच्छा ऐसा कीजिए, आप रोज़ सुबह थोड़ा पालक और मेथी खा लिया कीजिए और ये आधा घंटा वॉक कर लिया कीजिए और शाम को आप खाना जल्दी खा लिया करें। इनके तो पैसे नहीं बने ना। मेदांता हॉस्पिटल कहेगा आप तो बेकार के डॉक्टर हो, किसी की ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो रही, इनको फायर कर देंगे। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ये जो डॉक्टर्स हैं इनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि भाई हर महीने कम से कम 10 बाईपास सर्जरी आपको देनी है। आपको स्टेंट लगाने के लिए मेरे को 15 पेशेंट दे रहे हैं, नहीं तो फिर आपकी नौकरी की छुट्टी हो गई। नौकरी से निकाल दिया गया कुछ लोगों को। हाँ, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं कह रहा हूँ आप लोग इसको समझिए। अब मैं आज तो थोड़ा सा बता सकता हूँ, लेकिन हम फ्री कोर्स देते हैं 1 अप्रैल से। मेरे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं मीनाक्षी, प्लीज़ मीनाक्षी स्टैंड, हाँ ये हैं मीनाक्षी, आपको बताएंगी कैसे कोर्स ज्वाइन करना है। फ्री कोर्स होता है 30 डे का है? और हम यहाँ पे आपके घरों में वो जूस भी डिलीवर कर सकते हैं। हम लेके आए हैं, आपको सैंपल भी कराएंगे कि वो क्या चीज़ ऐसी है जिससे बिल क्लिंटन को 15 साल से कोई बीमारी नहीं हुई है हार्ट की। वी विल डिस्कस दैट, ओके। एनीवे, सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग। I call this the politics of health. They are playing with your health to make money. So it is important for you to correct your information. मैं 2-3 एग्जाम्पल और आपको देता हूँ गलत इंफॉर्मेशन की। अच्छा, ये डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग जिनके बारे में मैंने बताया था ना, इनकी एक किताब छपी है। किताब का टाइटल है मेटाबॉलिकल, 3 साल पहले छपी थी। ये मेटाबॉलिकल बुक का जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जो इंडेक्स का एक पेज है। ये मैं नहीं कह रहा, ललित कपूर, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को की बुक का इंडेक्स पेज है। ट्रीटमेंट इज नॉट क्योर, इट इज नॉट इवन ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं वो नहीं है, ट्रीटमेंट भी नहीं है। वो खाली इसलिए है कि आपका जो है वो कंट्रोल में रहे। डॉक्टर्स नहीं चाहते कि आप ठीक हो जाएं, और डॉक्टर्स ये भी नहीं चाहते कि आप मर जाएं, क्योंकि आप मर गए तो एक पेशेंट खत्म हो गया है? और अगर आप ठीक हो गए तो भी एक पेशेंट खत्म हो गया। हमको तो जब हम MBA करते हैं, जो आजकल लोगों की नई पढ़ाई है, वो कहते हैं हॉस्पिटल से कि भाई आपको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ाना पड़ेगा। आप मरने नहीं दीजिए किसी को, उसको लाइफ सपोर्ट पे रखिए, रखने दीजिए, जब तक जिंदा है पैसे मिलेंगे आपके हॉस्पिटल को। जब मर गया तो निकल गया हाथ से। और ठीक भी नहीं करने दीजिए, ठीक हो गया तो फिर अस्पताल ही नहीं आएगा। तो वो ये नहीं कहते कि दवाई लो आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। पहले तो ये कहा कि सारा आपकी गलती है, यू ईटिंग टू मच, नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ। अब आपने अपनी गलती मान ली तो आप ऐसे शीपिश हो गए। फिर कहते हैं कि अब हम और आप इसको मैनेज करेंगे। ये दवाई आप खाइए रोज सुबह शाम। मैंने जब पहली बार मैं गया ब्लड प्रेशर की दवाई, तो मैंने पूछा डॉक्टर से कि भाई कितने दिन खाऊं, कि उसकी उम्र तक हम जब जाते थे तो दवाई कहता था एंटीबायोटिक है 3 दिन खाओ, 5 दिन खाओ, 7 दिन खाओ। मैंने पूछा, मैंने कहा कितने दिन, 5 दिन कि 7 दिन। वो हंसने लगा, कहने लगा ललित वो दवाई नहीं है जो मैं तुमको पहले देता था पिछले 15 सालों से, ये तुमको सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। अगर 48 साल की उम्र में आपने शुरू करी और 88 साल आप जिए, 40 साल दवाई खानी पड़ेगी। इस दवाई पे आपकी जो फार्मा कंपनीज हैं, इस दवाई पे कैसा कमाती हैं? वो जो आप 3 दिन के लिए दवाई खाते हो उससे उनका नहीं पैसा बनता। मॉडर्न मेडिसिन ट्रीट सिम्टम्स नॉट डिजीज, ये उनकी बुक का टाइटल है, प्लीज अंडरस्टैंड। मॉडर्न मेडिसिन इज नॉट द सॉल्यूशन, इट इज द प्रॉब्लम। मॉडर्न मेडिसिन इज द प्रॉब्लम। जो आप दवाई ले रहे हैं इसके साइड इफेक्ट होते हैं। एक दवाई के जो साइड इफेक्ट हैं, फिर उस दवाई के साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए दूसरी लेनी पड़ती है, और फिर दूसरी दवाई के साइड इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट है ना। अच्छा, अगर 2 दवाइयाँ ले रहे हैं तो एक दवाई का साइड इफेक्ट, दूसरी का साइड इफेक्ट, तीसरा होता है कंबाइंड साइड इफेक्ट।
इसको कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो उसका कंबाइंड इफेक्ट तो सब भी लोगों को मालूम भी नहीं है, क्योंकि हर एक लोग अलग अलग दवाइयाँ ले रहे हैं। मान लो इनकी दवाई है ए एंड बी, इनकी है ए सी एंड डी, इनकी है ए एक्स वाई एंड जी, अलग अलग दवाइयाँ हैं। अभी अमेरिका में लोगों को मालूम ही नहीं है कि दवाई का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, किसी को नहीं मालूम है। एक वहाँ पे वेबसाइट है, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो तो प्लीज़ आप आके एंटर कर दो, आपने कौन कौन सी दवाई ली थी और क्या हुआ आपको। डेटाबेस बना रहे हैं, नहीं है उनके पास। डॉक्टर्स नीड टू अनलर्न न्यूट्रिशन। डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन ही गलत है। ये जब मेडिकल कॉलेज गए थे आज से 50 साल पहले, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिक 45 साल पहले, तो ये बताते हैं अपनी टॉक में कि पहले दिन जब 400 लोगों का नया बैच आता है स्टूडेंट्स का, तो डीन आके आपके साथ एक मीटिंग करता है, आपको पेप टॉक देता है। तो कॉर्नेल का जो डीन आया, उसने आके टॉक दी एंटरिंग क्लास को, 400 लोगों को। उसने उनसे कहा कि अगले 4 साल आप यहाँ जो सीखेंगे उसमें आधा सही है, आधा गलत है। ये डीन खुद कह रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि हमें मालूम नहीं कौन सा आधा ठीक है, कौन सा आधा गलत है, नहीं मालूम है। They don't know. Okay. Doctors need to unlearn nutrition. Dietitians lost their mind. ये जो डाइटिशियन आप हायर करते हो ना, कि आपको बताने के लिए क्या खाओ, उन्हें नहीं मालूम है, उन्हें गलत सिखाया गया है। Dietitians lost their mind because big pharma was their teacher. उनको कौन सिखा रहा है? बिग फार्मा इंडस्ट्री, इलाई लिली, रोश, फाइजर, रैनबैक्सी, ये उनका करिकुलम सेट कर रहे हैं। आपको इस चीज समझनी है। डिजीज दैट आर नॉट डिजीजेस, उनको हम डिजीज कह देते हैं। आपको मैं बताऊं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि फाइजर है, इलाई लिली है, इनका ग्रोथ प्लान होता है। अगर कोई कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो फिर उसके स्टॉक की वैल्यू नहीं जाएगी। तो ये चाहते हैं कि हर 7 साल में एक नई दवाई बने। अच्छा, दवाई तो तभी बनेगी जब कोई नई बीमारी होगी। तो इनकी कोशिश होती है कि हर 7 साल के अंदर एक नई बीमारी भी बन जाए और उसकी दवाई हम दें। और तो होगा नहीं, हमारी बीमारी हमें तो पहले से मालूम है, हम दवाई बना लेंगे। तो 7 साल पहले वो एडवर्टाइज करने लगते हैं। आपका इंडिया टुडे में एक छोटा सा ऐड आ जाएगा। क्या आएगा ऐड में? एक एग्जांपल देता हूं आपको कि क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि गर्मियों में आपको अंडर आर्म स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब सारी लेडीज सोच रही हैं, हाँ मिसेस मल्होत्रा का ब्लाउज सूखा हुआ था, मेरा देखो कितना गीला हो गया, मेरे को शायद ज़्यादा होती है। ये ठीक कर रहे हैं, ज़्यादा होती है। अरे किसको नहीं होती? सबको होती। नहीं, मेरे को ज़्यादा होती है। फिर और 6 महीने बाद आएगा, इसकी वजह ये होती है। फिर 1 साल के बाद आएगा, अगर ऐसा होता है तो आपको ऐसा करना चाहिए। और फिर 7 साल के बाद नई बीमारी भी रजिस्टर हो जाती है गवर्नमेंट के साथ, और दवाई भी रजिस्टर अप्रूव हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग सोने जाते हैं रात को, तो कभी नींद आने में टाइम लगता है। देखिए, आप जानबूझ के सो नहीं सकते, आप सोने की तैयारी कर सकते हो। अंधेरा कर दिया, ढीले कपड़े पहन लिए, फैन चला दिया, आके लेट गए, यू आर वेटिंग कि अब नींद आ जाए। नींद आएगी, ये कहना गलत है कि मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, जा रहे हो, लेकिन नींद आएगी। तो कभी कभी ये होता है कि ये पैर इधर का थोड़ा आगे रख लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर पीछे रख लिया, फिर इधर हो गया, ये पैर आगे है। पैर हमारा हिलता जुलता रहता है। अरे इन्होंने एक बीमारी रजिस्टर कर ली है, उसका नाम है RLS, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये बीमारी है, इसकी दवाई मिलती है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो हर 7 साल बाद ये नई बीमारियां क्रिएट करती हैं। आजकल ओबेसिटी का बहुत एडवर्टाइजमेंट चलना चाहिए। तो ये अमेरिका के डिपार्टमेंट हैं, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका के हैं, इंडिया में भी होंगे। USDA एंड FDA, they don't kill people, rather they let them die. They don't kill.
आई एम नॉट सेइंग दे किलिंग यू, दे लेट यू डाई, एंड बिफोर यू डाई दे लेट यू टेक मेडिसिन फॉर 10, 15, 20 years. Real food is good for the people and good for the planet. जो शाकाहारी खाना है उससे आप 10 गुना ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं. ये लोग क्या कर रहे हैं? ब्राज़ील के जंगल काट रहे हैं, मिलियंस ऑफ एकड़ हर साल. क्यों? फिर उसमें वहाँ पे कॉर्न और सोया ग्रो करते हैं, जो फिर वो एनिमल्स को खिलाते हैं और फिर वो एनिमल्स आपको देते हैं खाने के लिए. सो वर्ल्ड का टेम्परेचर जा रहा है. ब्राज़ीलियन फॉरेस्ट हैं, दे आर गेटिंग कट, क्लियर कटिंग. तो ये आपको मैंने एक नटशेल में बताया है, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग की किताब का इंडेक्स है. What is the book name? Where have we gone from? मेटाबॉलिकल, द बुक नेम इज मेटाबॉलिकल. मेटाबॉलिकल. एक और मैं आपको बता देता हूँ, आप प्लीज़ आज ही जाके देखें. एक डॉक्यूमेंट्री है, फ्री है, यूट्यूब पे है, जिससे मेरी ज़िंदगी चेंज हुई. हमने जनवरी 1, 2013 को मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी. उसका नाम है फोर्क्स, FORKS, फोर्क्स ओवर नाइव्स. मेरी वाइफ सिख सरदार फैमिली से हैं. हम लोगों को खाने का बहुत शौक़ था, बहुत खाते थे हर तरह की चीज़ ढूंढ ढूंढ के हैं. तो हमने कहा खाने की पिक्चर होगी, हमें मज़ा आएगा, चलो देखते हैं. जब देखा तो कुछ और ही निकली. वो ये है, उनका कहना कि जो चाकू है, चाकू रिब केज काटने के लिए यूज़ होता है और उसको खोल के बाईपास सर्जरी होती है हार्ट की. तो ये हड्डी काट के इसको पुल करते हैं और फिर वो आपकी आर्टरी की का पीस निकाल के पैड से थोड़ी सी आर्टरी का पीस अटैच करके सी देते हैं. इसको कहते हैं हार्ट बाईपास सर्जरी. तो बुक का, उसका मूवी का मतलब ये है कि बजाय इसके कि चाकू यूज़ करो और बाईपास सर्जरी करवाओ, अगर आप अपना कांटा प्रॉपरली यूज़ करो, मतलब खाना प्रॉपर खाओ, तो आपको कभी भी चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फोर्क्स ओवर नाइव्स, ये प्लीज़ आप ज़रूर देखें इस मूवी को. अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है. 2 लोग छुट्टी से लौट के आए तो देखा कि किचन ओवरफ्लो कर गई. अब जल्दी जल्दी गए थे. अब हमारे न्यूयॉर्क से बहुत इंडियन लोग यहाँ आते हैं अपने क्रिसमस में छुट्टियों में, और ठंड होती है वहाँ. तो जो भी घी वगैरह है, फैट, उन्होंने सिंक में डाला, बंद किया, हीटिंग ऑफ कर दी और इंडिया आ गए 1 महीने की वेकेशन में. दिसंबर जनवरी, 15 दिसंबर से 15 जनवरी. वहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया क्योंकि माइनस में होता है टेम्परेचर न्यूयॉर्क में. पाइप नीचे से जम गया, जो घी डाला था वो जम गया, तो पाइप बंद हो गया. ऊपर गलती से थोड़ा सा नलका खुला रह गया, वो बूंद बूंद पानी घर के पूरा सिंक भर गया और ओवरफ्लो करने लगा. तो जब ये लौट के पहुंचे तो उन्होंने जल्दी से ये ब्रूम निकाला और फ्लोर पूछने लगे कि पानी सुखा लें, नहीं तो हमारा टीक का, महागनी का फ्लोर है, खराब हो जाएगा. अरे पहले नल तो बंद कर दो. नहीं भाई, इंट्यूटिवली पहले नल तो बंद कर दो. यू ऑल सी एबल टू सी इट. अब इतना कॉमन सेंसिकल है कि इसको देख के हंसी आती है. नहीं आती है ना? हम सबको हंसी आती है कि कितने बेवकूफ लोग हैं. अरे नल तो पहले बंद करो तो बाद में पोंछना. लेकिन हम सब लोग वही गलती कर रहे हैं. हम गलत खा रहे हैं, उससे हमारा ब्लड प्रेशर ओवरफ्लो कर रहा है. वो ब्लड प्रेशर जो ओवरफ्लो कर रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मॉप दे देता है. वो जो आप गोली खाते हो ना, टेल्मा 40, वो मॉप है, वो ब्लड प्रेशर को कम कर देती है. अरे पहले नल तो बंद कर दो. क्यों ऊपर जा रहा है ब्लड प्रेशर? क्यों ब्लड शुगर ऊपर जा रही है? उसको समझो, नल तो बंद कर दो. मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपको समझना है कि प्रॉब्लम कैसे है और कैसे उसको ठीक करना है. ये देखिए, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये लड़की बेचारी मेरे को जुलाई 2020 में मेरे पास आई थी. जुलाई में 6 साल, 5.5 साल हो गए. इसका वजन इतना ज़्यादा था, इसको कहते हैं मॉर्बिडली ओबीज, ओबेसिटी, BMI 44. इतना ज़्यादा ओवरवेट है कि आदमी ओवरवेट से मर जाएगा. और 1.5 साल के अंदर देखिए क्या हो गया. ये खाना नहीं कम किया. हम लोग बहुत गलती करते हैं. जिनका वजन ज़्यादा है सोचते हैं कम खाने से ठीक हो जाएंगे. कम खाने से ठीक नहीं होते हैं,
क्योंकि कम खाने से शरीर को लगता है खाने की कमी है, वो आपका मेटाबॉलिक रेट कम कर देता है। जब जंगलों में, जबकि जहाँ पहाड़ों पे ये पोलर बेयर होते हैं, पोलर बेयर, उनको गर्मियों में, सॉरी जाड़ में खाने को नहीं मिलता, वो गुफा में जाके सो जाते हैं और 6 महीने कुछ नहीं खाते, तो उनका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। इसको कहते हैं हाइबरनेशन, हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर को जब हम कम खाना कर देते हैं, मान लो 4 रोटी की जगह आप 2 रोटी खाना शुरू कर दो, तो शरीर को लगता है खाने की कमी है, लगता है सूखा पड़ गया है, ये तो 4 रोटी रोज खाती थी, अब 2 ही रोटी खा रही है, इसका मेटाबॉलिक रेट कम कर दो, उसका आपका वो एक्सपेंडिचर रेट कम कर देता है। आपको शुरू में 2-3 हफ्ते वेट कम होगा, उसके बाद कम नहीं होता। तो खाना कम करने से वेट लॉस नहीं होता है, खाने को चेंज करना है। 10 minutes break. अच्छा, 10 मिनट ब्रेक, ओके ओके, You can take rest. हाँ हाँ, विल डू दैट, ओके। इसके बाद ये दिखाते हैं। सो इसको हाई ब्लड प्रेशर था, प्री डायबिटिक थी, ओबेसिटी थी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। ये राजशाह IIT बॉम्बे का है, हैं? इसको ब्लड प्रेशर की 7 दवाइयां लगी हुई थी, इसका ब्लड प्रेशर ही नीचे आ रहा था, डॉक्टर्स परेशान थे। मैं किसी और को नहीं मिला हूं जिंदगी में जो खाली ब्लड प्रेशर के लिए 7 दवाइयां लेता हूं। 7 दवाइयां, 7 मेडिसिन। इसने मेरे को फरवरी 1 में ज्वाइन किया था, हम हर फरवरी से शुरू करते हैं ना कोर्स, फरवरी 1। मार्च 15, 6 हफ्ते में ब्लड प्रेशर 115-75 आ गया और दवाइयां 7 से 2 रह गई। वो 2 की भी जरूरत नहीं थी, 115-75 तो बहुत कम है, दवाई नहीं खानी चाहिए। आपको 1 महीने में, 1 हफ्ते में बदल आ जाता है, 1 हफ्ते में चेंजेस आ जाते हैं अगर आप इसको फॉलो करें। और फॉलो करने में सबसे बड़ी चीज़ है हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना, पत्ते वाली सब्जियां, या जूस ले लेना, हाँ, सब्जी का जूस भी आसान होता है, सब्जी चबाने में मेहनत लगती है थोड़ी सी। Or green leaves, ना? हाँ, Green leaves. ग्रीन लीफ सैलड खाइए, ग्रीन लीफ का, पालक का साग बनाइए, घी नहीं डालना साग में, किसी भी तरह से आपको ग्रीन चीज़ें खानी है। तो हमारी ये फाउंडेशन जो हम बनाई है, हमारा गोल है टू एम्पावर इंडिविजुअल्स टू टेक चार्ज ऑफ देयर हेल्थ बाय डिससेमिनेटिंग एक्यूरेट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब हम एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, आप लोग, उसके बाद विल स्टार्ट डिस्कशन फर्दर। थैंक यू।